Good morning, everyone. My name is Neha Goyal, and today I am here to make a presentation on the topic D block elements. So, in this video, I'm going to make you understand what are D block elements, what is their importance, what are their properties, and what is their position in our periodic table. So, let's start. So, firstly, I'm going to tell you what are the position of our D block elements in the periodic table. So, on the left side, we have S block elements, means in which the electrons enters in the subshell S. Valence electron enter in the subshell S. And these are our P block elements in which the last electron of valence shell enter in P subshell. And these are our D block elements in the middle of S and P block elements. And here is our F block elements. These are S, P, D, and F. Okay, so means D block elements cover present in the middle of our periodic table. There are four series: first transition series, second transition series, third transition series, and fourth transition series. Next, why we have to study D block elements means what are the importance of our D block elements. So हमें पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो एक बहुत ही मेजर पार्ट को इन्वॉल्व हो रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है जैसे कि आयरन, वो यूज होता है हैवी मशीनरी में, बिल्डिंग मटेरियल्स में। हमें आयरन रोड देखते हैं हमारे घरों में, जब बनने को होते तो अब हम आयरन रोड डालते हैं, बीच में सरिये डालते हैं, मतलब ये बिल्डिंग में, हैवी मशीनरी में, इन सब में यूज होता है। सेकंड, ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो ज्वेलरी डाले, जैसे कि ये गोल्ड, तो ये जो ज्वेलरी हम डालते हैं ये भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बनी हुई है। कॉपर, निकल, जिंक आर वेल नोन फॉर द यूज इन कॉइन्स सिंस अर्ली सिविलाइजेशंस। जो हमारा पुराना जमाना था, राजा महाराजा को, तो उसमें जो कॉइन्स होते थे वो कॉपर के बनते थे, सिल्वर के बनते थे, निकल के बनते थे और जिंक के बनते। इन सब मटेरियल से हम लोग कॉइन बनाते थे। हम देखते हैं हमारे घरों में कॉपर का वेसल भी यूज होता है पूजा में, और में पूजा पर्पज के लिए हम कॉपर का वेसल यूज करते हैं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज यूजेस दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। मीन्स ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारे नेचर में ही प्रेजेंट, बट इन द ह्यूमन बॉडी दे ऑल्सो प्ले देयर वेरियस रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो आयरन प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन में, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू अदर बॉडी टिश्यूज। We all know that we are not even able to survive without oxygen. So, the transference of this oxygen from our lungs to other body tissues is done with the help of hemoglobin. In this hemoglobin, our iron is present, which is also the element of D block. Cobalt is the central element in vitamin B12. Molybdenum and iron, together with sulfur, constitute a versatile biological catalyst that is used to convert atmospheric nitrogen to ammonia. Okay, these are all the importance of D block elements. There are various other importances also of D block elements. Now, what are D block elements? So basically, the D blocks elements are those in which the last electrons enter in the penultimate D subshell. Not valence shell here, but penultimate D subshell. Now, what we mean by the term penultimate? Penultimate means the second last shell in the orbital arrangement of an atom. तो आप देख रहे हैं ये जो 3D है इसमें डला है, और 3D जो है वो यहाँ पर लास्ट शेल नहीं है। मीन्स यहाँ पे ये वैलेंस शेल नहीं है, यहाँ पे ये पेनल्टीमेट शेल का काम करे। अब ये 3D लास्ट में क्यों नहीं आया, पहले क्यों आया? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो
पॉली का प्रिंसिपल था वो यूँ कहता था जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो लोअर एनर्जी के सब शेल के दौरान होंगे, जिसकी लोअर एनर्जी होगा वो पहले फिल होगा, बाकी बाद में फिल होंगे। सो जो हमारा कैल्शियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं पहले। वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d0। अब यहाँ पे जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 4s में गए इंस्टेड ऑफ 3d। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ बोहर-बरी रूल के अकॉर्डिंग। अब बोहर-बरी रूल हमें क्या कहता है? जो हमारा बोहर-बरी रूल क्या कहता है? जो हमारा n+l है इसमें जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो जब हम 3d देखते हैं सो इट इज 3 + 2 5, और 4s देखते हैं तो 4 + 0 = 4। तो इसमें लोअर एनर्जी किसकी हुई? ऑफकोर्स 4s की हुई। तो इसलिए हमारा सबसे पहले जो फिल होता है वो 4s होता है इंस्टेड ऑफ 3d। बट जैसे ही स्कैंडियम आया 21 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके, हमारा इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? 3d में। फिर जैसे ये 3d1 में इलेक्ट्रॉन का हुआ ना, तो ये 3d इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं रहेगा, 3d1 हो गया। मान लो ये स्कैंडियम के ये 3d1 होते, ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, और 4s2 बाहर की तरफ ही चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं पेनल्टीमेट वर्ड का यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3d वैलेंस शेल का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे लास्ट सेकेंड शेल का काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको पेनल्टीमेट शेल का नाम दे रही हूँ। आई होप आई मेक इट क्लियर टू यू। सो नाउ इसलिए ये जो है ये हमारा पेनल्टीमेट शेल हुआ 3d1 4s2। वैसे जो स्कैंडियम से पहले के एलिमेंट है कैल्शियम, उसमें यहाँ पे 3d0 लिखा जाता है यहाँ पे, बट जैसे ही इस डी शेप शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं ये वापस से 4s के इस तरफ आ जाता है, एनर्जी इसकी वापस से कम हो जाती है, वापस से इस तरफ आ जाता है। ठीक है। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसको कह रही हूँ जिसमें कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनल्टीमेट शेल में जा रहे हैं, डी पेनल्टीमेट शेल में जा रहे हैं। बट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इन विच डी शेल इज पार्शियली फिल्ड इन द न्यूट्रल स्टेट और इन द आयोनिक स्टेट। मीन्स डी शेल जो है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, तब मैं उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहूंगी। अब हमें पता है जो स्कैंडियम टू कॉपर होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, बट हमें पता है कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 3d10 4s1। हियर जो डी का सब शेल है वो तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, देन व्हाई आई एम टेलिंग इट ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज कॉपर एक्सिस्ट, कॉपर शो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d9। मीन्स अब हमारा जो डी शेल है वो कंप्लीटली फिल नहीं रहा है, डी सब शेल अब मेरा इनकम्प्लीटली फिल हो गया। बट अगर मैं वही जिंक की बात करती हूँ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, अब जो मेरा जिंक होता है वो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है Zn2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से जब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तब ये 3d10 शो करता है, जो कि स्टिल अभी भी completely filled है। That's why zinc is not considered as transition element, but zinc is considered as d block element. So I can say that all the transition elements are d block elements, but reverse is not true. मीन्स हर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है, बट हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो, दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट, these are the electronic configuration of our d block elements. So स्कैंडियम 3d1 4s2, आर्गन आगे रहेगा ही, सब में आर्गन दिखाई रखे। स्कैंडियम 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2,
अब क्रोमियम यहाँ पर एक एक्सेप्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3d5 4s1 लिखा है इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2. सो हेयर माई क्रोमियम इज एन एक्सेप्शनल केस. मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2. अब कॉपर भी हमारा एक एक्सेप्शनल केस को शो कर रहा है. इंस्टेड ऑफ 3d9 4s2 इट इज शोइंग 3d10 4s1. जिंक 3d10 4s2. Here chromium and copper is showing an exceptional behavior. Now, reason why the chromium and copper show exceptional behavior. So basically, copper और क्रोमियम को शो तो करनी चाहिए ये वाली 3d4 4s2 3d9 4s2, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट दे आर शोइंग 3d5 4s1 3d10 4s1. So now the reason is the full 3d orbitals is more stable than a full 4s orbital. ठीक है, हमें पता है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल. ओके, और यहाँ पर एक रीजन ये है कि जो 4s और 3d ऑर्बिटल है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज एनर्जी के लेवल है. सो इट इज मोर स्टेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जम्प फ्रॉम द fill to jump to fill the 3d orbital rather than stay in the 4s orbital. अब देखो ये जो है मेरी कॉपर की मान लेते हैं. अब इसमें 1 2 3 4 है और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये जो है ये स्टेबल होना चाहिए. हर चीज दुनिया में स्टेबल होना चाहती है. हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली फिल्ड. सो ये क्या करेगा 4s और 3d जो है ना काफी सिमिलर सी एनर्जी होती है इनकी. तो 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 3d वाले ऑर्बिटल को दे देगा और इसको क्या कर देगा हाफ फिल कर देगा. मीन्स जो ये यहाँ पे मेरा d ऑर्बिटल है पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड हो जाएगा. ओके ठीक है, तो मतलब हमारा जो ये d ऑर्बिटल है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होएगा. नेक्स्ट, अब मैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं जो ये शो करते हैं. All the d block elements are metals. Some of the general characteristics of the d block elements are summarized below. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक नेचर को शो करते हैं, मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं. सो ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड except for group 11 element and have very high melting and boiling points. Nearly 10 transition elements have melting point above 2000 degrees Celsius and 3 elements tantalum, tungsten and rhenium have melting point above 3000 degrees Celsius. They are hard, strong, refractory and electropositive. The transition elements all have high densities. Osmium and iridium have densities of the order of 23 gram centimeter per cube. Most of the transition metals are malleable and can be reshaped on hammering. And ductile means these can draw out in water. Malleable means that we can convert it into thin sheet. Ductile means that we are able to convert them into thin wires by hammering it. Like if I'm pressing it, forcing it with the help of hammer, they can be easily converted into wires and thin sheets. Now, most of the transition metals are good electrical conductor, means they can conduct electricity through them. These elements form color compound of every color of the rainbow. Transition elements की एक खासियत है that they are very colorful, like rainbow colors. Means they are very colorful compounds. These elements forms alloy with other metals. They can easily mix up with other elements and form alloys. These elements are well known to form coordination complexes. ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी एक खासियत होती है कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत बनाते हैं. Most of the transition metals and their compounds are used as a versatile catalyst. They can also used as a catalyst
Most of the transition metals form paramagnetic compounds, means they are showing the magnetic properties also. The transition metals exhibit several oxidation states. They are showing the variable oxidation state. The transition metals in general are comparatively unreactive, but जो transition elements होते हैं वो comparatively other metals से थोड़े से unreactive होते हैं. Only a few metals such as iron are electropositive to react with acid, but कुछ elements like iron होते हैं वो electropositive होते हैं जिसकी वजह से वो other के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दैट दे आर donating their electrons. Now I am telling you about atomic radii. Atomic radii of the first transition series decreases from scandium to chromium and then remain almost constant till nickel and then increases from copper to zinc. जो एटॉमिक रेडियाई है ये जो है ये हमारा अजीब सा बिहेवियर को शो करती है. पहले तो ये डिक्रीज होगी, फिर वो कांस्टेंट होएगी और फिर ये इंक्रीज हो जाएगी. Now, the reason of this variation in atomic radii has been attributed to the increase in nuclear charge in the beginning of the series. अब ये जो डिक्रीज हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से किया है हमने. But as the electron continues to be filled in the d orbitals, they screen the outer 4s electrons from the influence of nuclear charge. When the increased nuclear charge and the increased screening effect balance each other in the middle of the transition of series. Okay. तो बीच में क्या होता है, जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है. द सेकेंड इज अब जो हम टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज में जाते हैं तो द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट बिकम वेरी डोमिनेंट. अब जैसे जैसे लास्ट में जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है डी के वो बढ़ते जाते हैं, इसलिए जो रिपल्सिव फैक्टर अब आ जाता है. एज अ रिजल्ट देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपेंड हो जाता है एंड कंसिक्वेंटली द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो ओवरऑल हमें ये समझने की जरूरत है जो हमारी एटॉमिक इंक्रीज है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब जो मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि स्कैंडियम टू कॉपर हमारा साइज डिक्रीज होता है. हियर द डोमिनेंट फैक्टर इज द न्यूक्लियर चार्ज. मीन्स न्यूक्लियर जो है इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हैं पुअर शील्डिंग के कारण. बट जैसे जैसे मेरे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स है बढ़ते जाते हैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से मिडल में जो क्रोमियम से लेके निकल तक जो हमारा कांस्टेंट फैक्टर आता है वो शो होता है एंड देन फाइनली इंक्रीजिंग फैक्टर शो होता है कॉपर टू जिंक, बिकॉज हियर द स्क्रीनिंग फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि अब यहाँ पे जो रिपल्सिव फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऐसे रिपेल हो रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपेंड होना पड़ेगा. इसलिए मीन्स फर्स्टली अवर nuclear charge is greater than the screening effect. In the middle, nuclear charge and screening effect balance each other, and in the last, screening effect is dominant over the nuclear charge. Ionic radii. The trend followed by ionic radii is same as that followed by the atomic radii. However, the ionic radii decreases with the increase in oxidation state. This is due to increase in the effective nuclear charge. However, the ionic radii of cation in the same oxidation state decrease with increase in atomic number. जो ionic radii होते हैं वो सेम ट्रेंड को फॉलो करती है एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियाई. बट जो अगर मेरा सेम ही कैटायन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. हमें सपोज मेरे पास M3 पॉजिटिव है, M2 पॉजिटिव है और M पॉजिटिव. इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ऑफ कोर्स M पॉजिटिव का, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला. फिर M2 पॉजिटिव का, सबसे छोटा किसका होगा? M3 पॉजिटिव का. ओके, नेक्स्ट मेटेलिक नेचर. एज
there is a less number of electrons in the periparallel shell. All the transition elements are metals. They dominate the qualities of matter, such as ductility and malleability. They are excellent conductor of electricity and heat. Apart from mercury, which is fluid and delicate, like alkali metal, all the transition elements are hard and fragile. ये बात जाननी होगी, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मेटेलिक नेचर्स को शो करते हैं. मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या है, मेटल की फॉर्म में आ रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, है ना. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर रहे हैं. वो भी हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो शोइंग द मेटेलिक नेचर. मीन्स अब मेटल जैसा नेचर शो करे, तो हमें पता है मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है. दे आर हार्ड, फ्रेजाइल, शोइंग मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर. बट अपार्ट फ्रॉम मरकरी, ऑल द एल्कली मेटल्स आर हार्ड एंड फ्रेजाइल. जो मरकरी होता है वो हमने देखा होगा, जो थर्मोमीटर में एक लिक्विड सा मटेरियल होता है, उससे ही मैं क्या कह रही हूँ, मरकरी कह रही हूँ. और वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है. उसको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं. Densities and metallic radii. The transition elements are much denser than the S block elements. अब जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो रहे हैं वो डेंसर होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स से. अब क्यों होता है, द रीजन, and show a gradual increase in density from scandium to copper. This trend can be explained by the small and irregular decrease in metallic ride coupled with a relative increase in atomic mass. ठीक, D इज इक्वल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हमें पता है. अब भले ही मेरा जो रेडियाई का ट्रेंड है वो इरेगुलर हो, अगर रेडियाई पे इफेक्ट होगा तो हमारी वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा, बट अगर हमारे मास पे इफेक्ट होगा तो मास पे. अब हमें पता है फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर हमारा जो मास है वो इंक्रीज कर रहा है. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. So, in that case, if my mass is increasing, then my density is also increasing. Mass is directly proportional to density. Means यहाँ पे जो मेरी density है वो रेडियाई पे डिपेंड ना करते हुए मास पे डिपेंड कर रही है. If my mass is increasing, density is also increasing. Color. Transition elements जो होते हैं वो various type of color show करते हैं. Transition metals ions generally possess one or more unpaired electron. हमें पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो 3d1 लगा लो, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, ऑल दिस स्कैंडियम टू जिंक. आई थिंक कॉपर और जिंक को छोड़ के हमारे सब में क्या इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट है. When visible light fall on a transition metal compound or ions, जब कोई लाइट हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स. जो हमारे डी शेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डी जेड स्क्वायर में, ऐसे करके 3 और 2 में ये स्प्लिट हो जाते हैं. तो जैसे ही हमारी एनर्जी, सुटेबल एनर्जी इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, सो हमारे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फ्रॉम द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू द हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, जिसको कि मैं कहती हूँ डी डी ट्रांजिशन. अब ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. अब हमें पता है वो ऊपर चले तो गए, बट वो ऊपर क्या होंगे, ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, और वो वापस से अपनी उसी एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे. और जब वो वापस से आएंगे नीचे, वो एनर्जी रिलीज करेंगे कुछ अमाउंट में. Since the energy involved in DD transition is quantized, only a definite wavelength get absorbed. Remaining wavelength present in the visible region got transmitted. Therefore, transmitted light shows some color complementary to the absorbed color. तो ये कुछ लाइट की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे, और फिर वो वापस जब नीचे आएंगे वो कुछ जो एब्जॉर्ब किया उसके कंप्लीमेंट्री जो कलर होगा उसको ट्रांसमिट करते हुए वापस से नीचे आ जाएंगे.
ये जैसे कलर दिखा रखे हैं, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कलर शो कर रहा है, ये वेनेडियम के 4 कलर है, ये क्रोमियम के कलर है, ये मैंगनीज के कलर है, ये आयरन के कलर है, ये कोबाल्ट का कलर, ये निकल का कलर है, ये कॉपर का कलर। देखो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कितने कलरफुल हो रहे हैं इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं वो बेसिकली शो कर रहे हैं क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Due to the presence of unpaired electron in the n-1d orbitals, most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic. That is, they are attracted by the magnetic field. अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं। अगर मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, देन दे आर शोइंग द डायमैग्नेटिक नेचर। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons increase from 1 to 5, the magnetic moment and hence paramagnetic character also increases, जिसकी वजह से paramagnetic nature भी बढ़ रहा है। Those transition elements which have paired electrons are diamagnetic, that is, they are repelled by the magnetic field. Metals like copper and nickel possess high paramagnetism, whereas they obtain permanent magnetic movement and are referred as ferromagnetic. Next, catalytical activity. They also behave like a catalyst. Catalytical activity of transition metals. Transition metals and their compounds are well known for their catalytical activities. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो निकल है वो कैटलिस्ट की यूज होता है ऑन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. Iron molybdenum is used as a catalyst in the synthesis of ammonia by Haber process. Platinum is used in the contact process for the combination of SO and O2 to generate sulfur dioxide. These are all the examples that how they are used as a catalyst in different processes. Vanadium pentoxide is used for the oxidation of SO with O to prepare sulfur trioxide. Manganese dioxide is used as a catalyst, the decomposition of hydrogen peroxide. The catalytical activity of the transition element. The why they are showing the catalytical behavior is due to the availability of the d orbitals. Next, complex formations. अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं। अब ये जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये पूरी ही एक अलग केमिस्ट्री के अंदर आती है, विच इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस, लाइक द कम्प्लेक्स ऑफ आयरन, hemoglobin that is present in our body, etc. Transition elements are well known for their ability to form complexes in comparison to S and P block element, which are reluctant to form complexes. This ability of transition element to form complexes is due to why they are showing the complex formation behavior. Basically, the small size of the transition metal cation, high effective nuclear charge, availability of the vacant d orbitals of appropriate energy of burning. तीन रीजन है, स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, उसमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र करी थी, जैसे Mn2 positive. This is oxidation number, a number assigned to element in chemical combination which represents the number of electron lost if it is positive, or gained if the number is negative by an atom of that element in the compound. Oxidation number is nothing but the thing that show that how much electron gain or lost by the element. Next, oxidation state of d block elements. Due to high third ionization enthalpy value, +2 is the oxidation state of the d block element that is the most stable. जो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं +2, क्योंकि उसमें हमने देखा जो लास्ट के 4s2 सब में प्रेजेंट है, सो दे आर मेनली शोइंग द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इवन ऑलमोस्ट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. The elements that exhibit a high number of states are found in the center of series or very close to it. जो एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं वो सेंटर में प्रेजेंट है सीरीज के. For example, manganese exhibits all oxidation state between +2 to +7.
Due to partially filled d orbital, transition element exhibits oxidation state that differ by a factor of unity. मीन्स हमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऐसे देखने को मिलती है 2, 3, 4, 5, 6, 7. मीन्स दे आर डिफर बाय द यूनिटी. मतलब 2 के बाद एक का डिफरेंस करके 3 है. ये यू शो नहीं करते 2 के बाद सीधा 4 पे चलेंगे, नहीं. दे आर शोइंग विद द डिफरेंस ऑफ 1. ओके. अब रिएक्टिविटी. On account of small size and large ionization potential, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. वाई दे आर less reactive? Because of the small size and large ionization potential. Transition metals are precipitated, not too reactive. Transition metals have very high heat of sublimation because of covalent bonding between them. Sublimation means क्या होता है? It means that these require large amount of energy to change from solid to the gaseous state. The transition metals ions do not get hydrated easily on account of all the factors: small size, large ionization potential, high heat of substitution, and low heat of hydration. The transition metals has a very small tendency to react. The following are the reasons, which is small size, large ionization potential, high heat of sublimation, low heat of hydration. These all are the reasons of their less reactive nature. Elements of the third transition series, especially platinum, gold, which do not react with the air, conventional acid and bases, are named as noble metals. Basically, noble मीन्स अनरिएक्टिव नेचर. नोबल गैसेस क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है. इसलिए यहाँ पे मैं इनको नोबल मेटल क्यों कह रही हूँ? बिकॉज दे आर इवन नॉट रिएक्टिंग विद द एयर. एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा. अब इनकी नेचर में अबुंडेंस देखते हैं कैसे क्या कितना प्रेजेंट है. ट्रांजिशन मेटल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट. द मोस्ट अबुंडेंट ऑफ ऑल द मेटल्स इज आयरन. सबसे ज्यादा अबुंडेंस में कौन सा मेटल है? आयरन है. आयरन रैंक फोर्थ इन नंबर आफ्टर ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. Fourth abundant element is iron. Transition elements like titanium, manganese, while the remainder are very poorly distributed. टाइटेनियम 0 से 6%, मैंगनीज 0 से 1%. जो बाकी के वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये जो है वो पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवन द लेस देन 0.01%. The measure of the element occur in mineral as oxide, hydrated oxides and carbonates. Although sulfides and arsenide are also significant. अब ये नेचर में प्रेजेंट तो है, बट किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे नेचर में कोई भी एलिमेंट प्योरली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता. वो किसी ना किसी ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, आर्सेनिक फॉर्म, मतलब वो किसी फॉर्म में होता है. उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज की फॉर्म में वो होता है. द प्रिंसिपल मिनरल्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी यूजेबल इन द कमर्शियल यूजेज. ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कमर्शियल यूज है. जैसे कि हमने देखा कि आयरन जो है वो घरों में भी यूज होता है, मशीन्स में भी यूज होता है. ये सब इसके क्या है? यूजेज है. सो D block elements. In this lecture, I told you about D block elements, their positions, their electronic configuration, and their natural abundance, their reactivity, properties, what they are showing, the behavior, atomic radii, ionic radii. All these things are told in this lecture. Thank you.